हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टाइड्स। द टाइड्स along is a coastal all over the world. We observe the sea water is moving both upward and downward at a rates varying from place to place. Such a variation in the sea level occur from here to here and from a day to day. At the time of a rising sea level, the incoming tide toward to the land is spoken of as a flow tide or the flood tides. At the time of falling sea level after a few hours, we speak of the tides water going out of withdrawals is ebb tides. Low tides, above tide is the low tides, and there are flood tides are high tides, and the ebb tide is the low tides. The tides are really there is the largest wave keeping their oceans water restless. Twice a day or regularly at the constant intervals the tides flow in, and twice a day it is a ebbs bay. Twice as a month flow tides are higher and the ebb tides are lower than the average. Also twice a month flow tides are lower and the ebb tides are higher than the average. However, there is a regular interval between two high tides or between two low tides is a 12 hours and 25 minutes, and not exactly is a 12 hours. Each day in a 24 hours, their high tides arrives about 51 minutes later than on the previous day. It is so because each day is a rising and setting of the moons also fall behind by the 51 minutes. It's a take a 24 hours or 50 minutes for the rotating to the earth varying to the same meridians and vertically below to the moons every day. That is the most important. The timing of their tides at the place on the coastal will be clear to you. Your form of the following example. The high tides here 6 a.m. and the low tide is the 12:13 p.m. and the high tide is the 6:25 p.m. and the low tide here are coming to the 12:38 a.m. and high tides come to the 6:51 a.m. next day. There is the most important, the tides arrive and low tides and high tide. The factor responsible for the warnings about the such a variation in the regulation and the size of the tides are the location of the sun, the moon and the earth is related to the each other, which is related in the straight line. The distance of the sun and the moon from the earth are not a constant, and the next year our globes is not entire covered with the water. The outline and shape of the coastal may be helped or hidden in the tides. There is the most important. The still there are tides follow each other with the great is a punctuations at the one given coastal. And what are the forces that generate the tides? The earth attract and is also attracted by the sun, the moon and by other is a planet's body. It's called their gravitational force, and it is operate between the suns, moons and the earth. It is set their oceans water is a motion producing a tides current, and tides are a proof of such a gravitational pull. The moons and the sun both extend there is a gravitational force on the earth. The ocean, submarine relief and the circulation sun, which is a bigger in a mass than to the moon, is also at the greater distance from the earth than the moon. Therefore, the gravitational attraction of the moon is a more effective on the earth and the gravitational attraction of the sun. Since there is a water is a liquid and the mobiles it is a bearings in the direction facing the moon easily noticed. Yet the lower tides was also develops on the other side of the earth and the further from the moon because the moon is the least attraction. Here show the diagram of formation of tide. There is a CF is a centrifugal force and GF is a gravitational force. There is the tides based earth. There is a moon. There is the most important diagram here.
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वार भट्टा। देखिए ज्वार भट्टा के बारे में आपने सुना ही होगा कि आखिर जो ये पानी की जो लहरें उठते हैं, तो हम अमावस्या पूर्णिमा की ही बात क्यों करती हैं? क्या अमावस्या पूर्णिमा में कुछ जुड़ा हुआ बातें होती है? क्या ये ज्वार भट्टा उठते हैं, इसका हमारा क्या फ़ायदा होता है? कहते हैं पुराने समय में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर जो होते थे बंदरगाहों पे, जो लोग यहाँ से वहाँ यात्रा करते थे और समुद्र में अपने जहाज़ को उतारते थे, वो पूर्णिमा और अमावस्या की बातें किया करते थे कि वो अमावस्या पूर्णिमा की वो प्रतीक्षा करते थे और वही समय जो था पर्याप्त था। लेकिन आज के समय में अगर आप कहोगे अमावस्या पूर्णिमा के नाम से ही आपको डर लगेगा। तो कहते हैं उस समय आखिर लोग पूर्णिमा और अमावस्या की प्रतीक्षा क्यों करते थे? आखिर पूर्णिमा अमावस्या में ज्वार भट्ट के साथ क्या होता है? तो यही बात का जो है हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर अमावस्या पूर्णिमा में ज्वार भट्ट का क्या रिलेशन है, अमावस्या पूर्णिमा में क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि ज्वार भट्टा का क्या क्या उपयोग हो सकता है। कहते हैं समस्त विश्व में जो है समुद्र तल के साथ साथ समुद्री जल विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दर से ऊपर उठता है। समुद्री जल की सतह में यह परिवर्तन घंटों दर घंटों तथा दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। उठते हुए समुद्री जल स्तर के समय धरातल की ओर बढ़ते हुए जल के प्रभाव को ज्वार या ज्वारीय बाढ़ कहते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि ज्वार और ज्वारीय बाढ़ क्या होता है। यानी उठते हुए समुद्री जल स्तर के समय धरातल की ओर बढ़ते हुए जल को हम ज्वार या ज्वारीय बाढ़ कहते हैं। कुछ घंटों के पश्चात गिरते हुए समुद्री जो है जल स्तर के समय ज्वारीय जल वापस चला जाता है। यानी जैसे खत्म होता है वो वापस चला जाना स्वाभाविक बात है। यह भट्टा कहलाता है। ज्वारीय बाढ़ उच्च ज्वार तथा भट्टा निम्न ज्वार। देखिए ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। ज्वारीय बाढ़ जिसको हम उच्च ज्वार कहते हैं और भट्टा को हम क्या कहते हैं, निम्न ज्वार। वास्तव में ज्वार भट्टा सबसे अधिक बड़ी तरंगों जो है महासागरीय जल को गतिशील करती है। नियमित रूप से प्रतिदिन एक निश्चित अंतराल पर 2 बार समुद्री जल ऊपर उठता है और 2 बार नीचे बैठता है। कहते हैं ये जो है ये महीनों में जो है 2 बार उच्च ज्वार तथा ज्वारीय बाढ़ औसत ऊंचाई होता है और भट्टा नीचा होता है। ठीक इसी प्रकार से महीनों में 2 बार ज्वारीय बाढ़ औसत से नीचा होता है और भट्टा नीचा होता चला जाता है। 2 उच्च ज्वारों के बीच अथवा 2 निम्न ज्वारों के बीच निमित्त जो अंतर 12 घंटे या 25 घंटे तक होता है, न कि ठीक 12 घंटे का। दिन का 24 घंटों में उच्च ज्वार पिछले दिन की तुलना में 51 मिनट देर से आता है। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रतिदिन चंद्रमा के निकलने और छिपने में 21 मिनट का जो है विलम्ब होता है। देखिए चंद्रमा का जो है काफ़ी इसमें रोल होता है। प्रत्येक दिन जो है घूर्णन करती हुई पृथ्वी जो है उसी देशांतर के ठीक चंद्रमा के नीचे लाने में 24 घंटे 50 मिनट लगते हैं। किसी तट पर ज्वार के आने का समय निश्चित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है समय काल की। उच्च ज्वार जो है 6 प्रवाहन में आती है, निम्न ज्वार जो है 12-13 जो है अपराहन में आती है और उच्च ज्वार जो है 6-25 अपराहन में आती है। अगर निम्न ज्वार की बात करें तो पूर्वाहन में आएगा जो 12 और 38 के बीच में होगा और उसका उच्च ज्वार जो होगा ये होगा 6 से 51 प्रभावन में होगा। तो ये बातें जो है इस समय अवधि है जब ये ज्वार भट्ट आते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ज्वार भट्ट जो होती है एक समय काल के लिए होती है और जो पहले समय के लोग होते थे इन्हीं समय का जो है प्रतीक्षा करते थे। तो चलिए देखते हैं प्रतीक्षा क्यों करते थे। कहते हैं ज्वार के समय आकार में परिवर्तन के निम्न कार्य उत्तरदायक था। कहते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक दूसरे से संबंध में स्थिति शायद कभी भी एक सरल रेखा में होती हो। पृथ्वी से सूर्य तथा चंद्रमा की दूरी स्थिर नहीं होती है। हमारा ग्लोबल पूरी तरह से जल से ढका हुआ नहीं है। तट की आकृति ज्वार के आने में मदद या बाधा भी बन सकती है। तो इसी कारणों से जो है यह है आगे इसके जो है सबके बावजूद किसी भी तट पर ज्वार एक दूसरे से बाद बड़ी ही नियमितता के साथ उत्पन्न होती है। वो कौन सी शक्ति है जो ज्वार भट्ट उत्पन्न करती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसको मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि वो कौन सी शक्ति है जो ज्वार भट्ट को उत्पन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। पृथ्वी का आकर्षण करती हुई सूर्य और चंद्रमा उन ग्रहों के समुद्र को प्रभावित करती है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो कि पृथ्वी, चांद और पृथ्वी जो है सूर्य को जो है काफ़ी प्रभावित करती है। यानी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा को जो है गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी प्रभावित करती है। यह शक्ति जो है गुरुत्वाकर्षण ही बल है, यह सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच कार्य करती है और यह महासागरीय जल की गतिशीलता करके उसमें ज्वार धाराएं उत्पन्न कर देती है। यानी ज्वार भट्ट आने का सबसे बड़ा कारण जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का
गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भट्टा इस प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। चंद्रमा और सूर्य दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। यानी चंद्रमा सूर्य दोनों ही अपने गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी को काफी प्रभावित करते हैं। सूर्य चंद्रमा से आकार में बड़ा होता हुए भी चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी को अधिक दूर है। इस कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में पृथ्वी पर अधिक प्रभावित करती है, यानी काफी प्रभावशाली होती है। जब तरल दोनों के कारण जो है चल्यमान है, इसलिए पृथ्वी की पानी वाला भाग जब चंद्रमा के सामने पड़ता है तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण इसमें ज्वारभाट उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही एक निम्न ज्वारीय उभार जो है पृथ्वी की दूसरी ओर चंद्रमा से दूर होता है। यह उभार काफ़ी नीचा होता है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का आकर्षण सबसे कम होता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हो जहाँ पर ज्वारभाट का निर्माण दर्शाया गया है। जीएफ को जो है गुरुत्वाकर्षण बल लिया गया है और सीएफ को अपकेंद्रित बल लिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे चंद्रमा के समक्ष जो भी गुरुत्वाकर्षण लगती है तो वैसे ही ज्वारभाट आने का संकेत मिल जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।